Dear students, we have so far discussed about the evidences of evolution. We have discussed that the first type of evidences were paleontological evidences, in which fossils were being found and studied in order to get the information about that how the evolution might have occurred. The another type of evidences that we had talked, which was very essential topic, that was anatomical and morphological evidences. These were the evidences in which we observe the organisms, internal organs and their functions, whether they are same or not. That is being used to study homologous organs and analogous organs. Homologous organs were the organs in which we have discussed that what were homologous organs and what were analogous organs. Along with that, we have also discussed what is vestigial organs. So there were organisms in which there were organ was similar, anatomy was same, but the functions were different. These were known as homologous organs. Whereas analogous organs were different, internal structures were different, but the functions were same. That were the analogous organs. So we have discussed about them. The next type of evidences are the embryological evidences. Students, this topic is important only in the context of NEET examination. Embryological evidences are not mentioned in your textbook. Okay, so have a look on it, that what are embryological evidences. Embryological evidences indicate that just by observing the different embryos of organisms, their larval forms, their progression, we can understand the evolutionary mechanisms. So first we are going to talk about the similarities which are found in the early development of the organisms. So first is similarity in early development. Similarities in early development indicates that what are the similarities that we observe in multicellular organisms. All the multicellular organisms begin their life in the form of a fertilized egg, which is known as the zygote. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी लाइफ किस फॉर्म में स्टार्ट होती है, तो उनकी जो लाइफ है दैट बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल, और वो सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, या तो हम जाइगोट कहते हैं. तो सारे ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ये मैकेनिज्म सेम ही है. दैट इंडिकेट्स दैट इन ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइफ विल बी बिगिनिंग फ्रॉम द जाइगोट. तो ये एक सिमिलैरिटी होती है सारे ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. नाउ दिस जाइगोट इज गोइंग टू undergo the cleavage divisions. It is going to undergo the cleavage divisions, which are the rapid mitotic divisions. और इतने rapid divisions होते होते there will be formation of the structure, formation of morula. There will be formation of mass of cells, जिसे क्या कहा गया है, morula कहा गया है. अब ये जो morula है that is going to arrange, the morula is going to arrange in a way that there is single layer of cell outside and inner cell mass within, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुला. क्या कहते हैं उसे, ब्लास्टुला. तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में सबसे पहले हम अर्ली डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो सारे ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है, तो सारे ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले जो है वो बनता है जाइगोट. ये जाइगोट में रैपिड डिविजन्स होने पर, जिन्हें कहते हैं क्लीवेज डिविजन्स,
क्लीवेज होने पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल कंडीशन। ये 8 और 16 सेल कंडीशन को कहा जाता है मॉड्यूला। यहाँ पे ये स्टॉप नहीं होता, मॉड्यूला अभी भी आगे डिफरेंशिएट होता, डिवाइड होता जाता है, एंड इट फॉर्म्स अ सेल दैट इज बाउंड्री ऑफ सेल्स आउटसाइड एंड इनसाइड विल बी द इनर सेल मास, जो हमने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे कहेंगे ब्लास्टुला, एंड दिस ब्लास्टुला इज देन गोइंग टू develops the next level structure which is called gastrula। मतलब formation of germinal layers, formation of germinal layers मतलब जर्म लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मिजोडर्म। तो यहाँ पे ये जो जर्म लेयर्स बनते हैं, इस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं और वो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैस्ट्रुला। तो ये जब हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रुलेशन होगा, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद 2 पॉसिबिलिटीज है, ऑर्गेनिजम्स विथ आइदर 2 जर्म लेयर्स एंड ऑर्गेनिजम्स विथ 3 जर्म लेयर्स। 2 जर्म लेयर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। So what does this show? What does this show? It shows that all multicellular life forms begin from a zygote, and in all organisms, all multicellular organisms में क्या फॉर्म होता है? गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होता ही है। और ये गैस्ट्रुलेशन के बाद 2 कैटेगरीज डेवलप हो गई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ 2 ही जर्मिनल लेयर्स बने, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स विच आर बिफोर प्लैटीहेलमिन्थिस। प्लैटीहेलमिन्थिस से पहले जो सीलियंट्रेट्स हैं, निडेरियंस, दे आर हैविंग ओनली 2 जर्मिनल लेयर्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स बने जिनमें 3 जर्मिनल लेयर्स थे। तो वहां से क्या हुआ? एंसेस्ट्रल इवोल्यूशन सिमिलर था, बट एट अ स्टेज दे ऑल डिवाइडेड, एट अ स्टेज दे ऑल डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म 3 जर्मिनल लेयर्स, तो उन्हें कहा गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये एक मेथड है दैट अर्ली डेवलपमेंट इन ऑल द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म शोज सिमिलैरिटी, and that shows that maybe the ancestry might be very common। इनिशियली जो है वो ये बताता है कि इन सबकी एंसेस्ट्री क्या रही होगी, बहुत ही सिमिलर रही होगी। Later on, due to different functions, due to different structures, due to different environmental conditions, ये सारी चीजें क्या हुई है? डाइवर्स होती गई है। Another thing is that if we compare the early vertebrate embryos, अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो अर्ली वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, अगर हम सिर्फ वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज की बात करें तो देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द एम्ब्रियो ऑफ फिशेस, सैलमेंडर, टॉर्टॉइस, मैन, चिक, सबके एम्ब्रियोज में क्या है? सिमिलैरिटी। पर ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? वर्टिब्रेट। ये सारे ही वर्टिब्रेट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एम्ब्रियोज, अर्ली एम्ब्रियोज अगर देखे जाए तो आपको मैं इस लेक्चर के एंड पे एक वीडियो, एक इमेज भी शेयर करूंगी जिसमें वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज के डायग्राम दिए गए हैं। तो अगर आप उस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फिश का भी एम्ब्रियो ऐसा ही दिख रहा है जैसे ह्यूमंस का एम्ब्रियो होता है इन द इनिशियल डेज, राइट? जब जेस्टेशन पीरियड का इनिशियल वीक होता है, 4th वीक, 5th वीक, तो इस टाइम पे जो स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो एकदम ह्यूमन टाइप नहीं होता। उसके जगह पे उनका जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको देख के आप समझ पाओगे कि चिक्स में भी एम्ब्रियो वैसा ही दिखता है जैसा ह्यूमंस का है, वैसा ही दिखता है जैसे फिशेस का है, वैसा ही दिखता है जैसे टॉर्टॉइस का है। तो इन सबके वर्टिब्रेट के जो एम्ब्रियोज होते हैं, सारे ही वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो में क्या है? सिमिलैरिटी है, विच प्रूव्स दैट
एम्ब्रियो जब इतने सिमिलर हैं तो ये चीज तो प्रूव हो ही जाती है दैट दे ऑल माइट बी बिलोंगिंग टू सम कॉमन एंसेस्टरी। कॉमन एंसेस्टरी होती है तो ही इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर्स में होती है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका मैं आपको डायग्राम शेयर करूंगी तो आप उसमें देख लेना कि वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आप इमेज देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि चिक का एम्ब्रियो, टॉर्टोइस का एम्ब्रियो है या मैन का एम्ब्रियो। इनिशियल स्टेजेस में आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे दैट वेदर इट इज ऑफ मैन और वेदर इट इज ऑफ टॉर्टोइस बिकॉज दे लुक वेरी वेरी सिमिलर। तो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में जब सिमिलैरिटी होती है तो इनवर्टिब्रेट के लार्वा में भी सिमिलैरिटीज होती है। तो सिमिलरली हम देखते हैं थर्ड थिंग दैट इज सिमिलैरिटीज in invertebrate larva। invertebrate larva, यहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं दैट एनीलिडा और मोलस्का दोनों अलग फाइलम है पर दोनों का जो लार्वा है दैट इज ट्रोकोफोर लार्वा एंड इट इज सिमिलर। मतलब एनीलिड्स में जो लार्वा है उसे भी ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, मोलस्का में भी ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं और ये दोनों लार्वा जो है लार्वल फॉर्म्स बहुत ही सिमिलर हैं। मतलब उनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं दैट वेदर दे आर ग्रोइंग अप इनटू एनीलिड और मोलस्कन्स बिकॉज दे लुक वेरी सिमिलर। तो जैसे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज में सिमिलैरिटी होती है वैसे इनवर्टिब्रेट्स के लार्वल फॉर्म्स में भी सिमिलैरिटी होती है एंड दिस शोज दैट मे बी मॉलिस्कन्स जो है वो किसमें से डेवलप हुए होंगे, दे माइट हैव डेवलप्ड, मतलब जो एनीलिड्स हैं दे माइट बी डेवलप फ्रॉम मॉलिस्कन्स या इनके सिमिलैरिटीज या इनके एंसेस्ट्रल कॉमन हो सकते हैं, ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है इन द पास्ट। तो लार्वल फॉर्म्स भी सिमिलर हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम और एक चीज बात करें देयर विल बी अनदर थिंग दैट इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ना, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या? प्रोग्रेसिव मतलब सिंपल टर्म्स में आगे बढ़ता हुआ। जो ऑर्गेनिजम्स का जो लार्वा होता है इट इज लेस डेवलप्ड एज कंपेयर टू द लार्वा एज कंपेयर टू द एडल्ट फॉर्म। तो लार्वा से जब एडल्ट चेंज होता है तो क्या हुआ, उसमें एक ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ दैट इट इज प्रोग्रेसिंग। मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंजिंग फ्रॉम लार्वल स्टेज टू एडल्ट स्टेज। मेटामॉर्फोसिस का सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि चेंज होना फ्रॉम अ लार्वल स्टेज टू एडल्ट स्टेज। जैसे कि फ्रॉग में होता है, फ्रॉग का लार्वा होता है, टैडपोल डेवलप होता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं और फिर उसमें से एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो एडल्ट फ्रॉग इज मोर डेवलप्ड देन द लार्वा, उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ऐसा ही दूसरा एक टर्म है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब लार्वा ज्यादा डेवलप्ड था और एडल्ट जो है वो उससे कम डेवलप्ड है। ऐसी रिवर्स कंडीशन भी होती है जिसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में हम अगर देखने जाए तो एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि लार्वा ऑफ लैम्प्रे, larva of lamprey is similar to adult amphioxus। अब यहाँ पे थोड़ा एनिमल क्लासिफिकेशन को याद करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? तो हम जब बात करते हैं एम्फिऑक्सस की तो एम्फिऑक्सस बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स, इवन लैम्प्रे बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स, बट एम्फिऑक्सस बिलोंग्स टू a group that was Cephalochordata, whereas lamprey belongs to cyclostomes। अगर आपको याद हो तो लैम्प्रे दैट इज साइक्लोस्टोम्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एम्फिऑक्सस जो है वो सिफेलोकॉर्डेटा जो पहले आता है उसके बाद ज्यादा डेवलप्ड आता है साइक्लोस्टोम्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है एम्फिऑक्सस उसका अडल्ट फॉर्म किसके जैसे सिमिलर है, लैम्प्रे के लार्वा की तरह। ये समझाता है कि मे बी द लार्वा ऑफ द लैम्प्रे, मतलब लैम्प्रे जो है दैट माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एम्फिऑक्सस और माइट हैव ओरिजिनेटेड बाय मॉडिफिकेशन इन सिफेलोकॉर्डेटा, क्योंकि सिफेलोकॉर्डेटा जो है
कॉर्डेट्स में 3 कैटेगरी आती है, अगर आपको थोड़ा याद हो तो, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, राइट, एंड थर्ड आता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले ये आता है साइक्लोस्टोम्स। तो एक वर्टिब्रेट में बिलोंग कर रहा है, एक सिफेलोकॉर्डेट में बिलोंग कर रहा है, पर सिफेलोकॉर्डेट का जो कैरेक्टर है, मतलब जो एम्फिओक्सस का एग्जाम्पल है, उसका एडल्ट फॉर्म किसके जैसा है, लैम्प्रे के लार्वा की तरह। मतलब ये मान सकते हैं कि ये इनमें से इमर्ज हुए होंगे, एंसेस्टर्स होंगे उनके, ऐसा हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब जब हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं, मतलब लार्वा जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है और उसका अडल्ट फॉर्म कम डेवलप्ड है। यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं उनकी टेल में नोटोकॉर्ड होता है, कौन से स्टेज में, लार्वल स्टेज में, पर जब वो एडल्ट में चेंज होते हैं तो देयर इज नो नोटोकॉर्ड। मतलब एडल्ट फॉर्म में नोटोकॉर्ड नहीं है, जबकि उनका जो प्रीवियस लार्वल फॉर्म है उसमें नोटोकॉर्ड है। तो लार्वा जो हुआ वो कैसा हुआ, यहाँ पे मोर डेवलप्ड देन द एडल्ट। तो इसे हमने रिट्रो मतलब वापस उल्टा डेवलपमेंट, उल्टा मतलब पीछे जा रहा है, मोर डेवलप नहीं हो रहा, उसकी जगह पे क्या हो रहा है, लेस डेवलप। मतलब ऐसा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है यहाँ पे कि सम ऑर्गेनिजम्स इन लार्वल स्टेजेस they are having the presence of notochord, but when they change to adult actually they should have notochord well developed, instead they do not have notochord। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव कहते हैं। जबकि प्रोग्रेसिव जो है, प्रोग्रेस जैसे, और एक एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल रिट्रोग्रेसिव का बताती हूँ। फ्रॉग है तो टैडपोल में टेल प्रेजेंट होती है और एडल्ट फ्रॉग में टेल एब्सेंट है। तो ये क्या हुआ कि एक ऐसा कैरेक्टर जो लार्वा में था पर एडल्ट फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। थोड़ा आप एग्जांपल से समझने का ट्राई करना, और इसका मैं आपको एक इमेज भी शेयर करूंगी, तो आप एविडेंसेस में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस थोड़ा पढ़ सकते हैं।